اندھیر نگری چوپٹ راج LPG مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹرز کی اجارہ برقرار۔ شہریوں کے لیے گیس کا حصول اور ریٹیلرز کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ LPG ایسوسی ایشن رہنما ملک تیمور آوان کہتے ہیں کہ مہنگی گیس خرید کر سرکاری ریٹ پر کیسے فروخت کر سکتے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، وسیم افتخار سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ LPG کی قیمتوں کی وجہ سے جہاں صارفین کے لیے گیس خریدنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہیں ان قیمتوں کی وجہ سے جو LPG کے سے ریٹیلر سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے لیے بھی کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ LPG کی جو سرکاری قیمت ہے ریٹیل کی وہ فی کلو 247 روپے کلو مقرر ہے، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں 280 روپے کلو تک پہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملک تیمور آوان، جو کہ LPG ایسوسی ایشن کے رہنما بھی ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کس حد تک پریشانی ہے، ایکس مل ریٹ کیا ہے LPG کا، اور کاروبار کرنے کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش ہیں؟ پرابلم یہ ہے جی کہ اصل میں غریب دکاندار پہ جرمانے ہو رہے ہیں۔ 247 روپے سرکاری ریٹ ہے، جو کہ پورے پاکستان میں کہیں فروخت نہیں ہو رہی۔ پلانٹوں سے ہمیں گیس مہنگی مل رہی ہے، یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر پلانٹ کا آپ ریٹ لینا چاہیں KG میں تو 254 روپے کچھ پیسے ہمیں ایکس پلانٹ مل رہی ہے۔ اب جو کنزیومر ریٹ ہے وہ 247 روپے ہے، تو کیسے ہم فروخت کر سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ریلیف دے ضرور رمضان اور مبارک کے مہینے میں عوام کو، لیکن اگر غریب دکاندار پہ جرمانے نہ کرے، جو برائی کی جڑ ہے وہاں تک پہنچے اور وہاں پہ جا کے جرمانے کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ جی بالکل، اندھیر نگری چوپٹ راج ان کا یہ کہنا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی انوائس نہیں دی جاتی جب یہ جو ریٹیلرز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور LPG مارکیٹنگ کمپنی سے گیس خریدتے ہیں، تو صرف اور صرف میسج کے ذریعے سے ریٹ جو ہے اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت جو اور ضلع انتظامیہ ان عوامل کا جائزہ لے اور ان عوامل کو جو ہے وہ سامنے لائے جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص جو LPG مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں اور جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے پابند بنایا جائے، تاکہ نہ صرف ریٹیلرز کی مشکلات کم ہو سکیں بلکہ شہریوں کو بھی جو ہے وہ سستے داموں LPG گیس جو ہے وہ میسر ہو سکے۔ جی، نارتھ ناظم آباد UC2 بلاک کے میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاکھوں مکین ماہ رمضان میں پانی سے محروم ہیں۔ شہری کہتے ہیں بلوں کی ادائیگی اور شکایات کے باوجود واٹر کارپوریشن کے عملے کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ جی رضوان، بتائیے گا۔ دار کی ضرورت ہے، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے جو ہے ماہ سیام کے آغاز سے قبل کہا تھا کہ تمام علاقوں میں جو ہے وہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ دعوے ٹھوس دکھائی دیتے ہیں ہم کو بلاک کے نارتھ ناظم آباد میں، جو کہ UC2 لگتی ہے نارتھ ناظم آباد کی، اور شادمان کا یہ علاقہ جو ہے اس سے منسلک ہے۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پہ جو آبادی کا دباؤ ہے، یہاں پہ FL سائٹ زیادہ ہیں، فلیٹوں میں، بلند و بالا عمارتوں میں جو رہائش پذیر افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 4 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے، جو کہ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ UC چیئرمین کے کوارڈینیٹر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو K بلاک کا علاقہ ہے یہ سالوں سے پانی سے متاثر، سالوں سے، جبکہ یہاں پر بلنگ کی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے 80 to 90% لوگ جو ہے یہاں پہ بلنگ بھرتے ہیں پانی کی، لیکن پانی کا معاملہ بہت برا ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے پچھلے 2 سالوں سے جب سے یونین کونسل آئی ہے ہم کوشش کر رہے تھے کہ واٹر بورڈ جو ہے ہم سے بل لیتا ہے، پیسے ہم پورے دیتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا۔ ریزن کیا ہے؟ کیا لائنیں ڈیمیج ہیں یا وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ لائنز کا بھی پرابلم ہے۔ لائنز کا پرابلم یہ ہے کہ لائن یہاں پر بہت پرانی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ درختوں کی جڑیں گھس جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بلاکیج ہو جاتا ہے پانی کا، اور اتنے بڑے آبادی والے ایریے کے حساب سے جو پانی کا جو ڈایا ہونا چاہیے لائن کا وہ ڈایا بھی نہیں ہے۔ یہاں 6 انچ کی ایک لائن آتی ہے، اس کے اندر سب ڈسٹریبیوشن لائنیں بہت ساری نکلی ہوئی ہیں جس میں پانی پہنچتا نہیں ہے۔ بہت پریشانی کا حال ہے۔ اب ہم نے جب واٹر بورڈ سے رابطہ کیا 2 سال پہلے، بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو پانی کا بحران ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آبادی کا دباؤ یہاں پر بڑھ گیا ہے، لیکن لائن جو ہے وہ انتہائی چھوٹی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے پانی کی فراہمی جو ہے وہ قلت آب عروج پر ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس قلیل نوعیت کی لائن میں جو ہے وہ مختلف جگہ پر جو ہے وہ رکاوٹیں بھی ہیں جس کو دور کرنے کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ فوری طور پہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نئی پانی کی اور بڑی لائن یہاں پر بچھائی جائے تاکہ یہاں کے شہری بھی جو ہے یہاں کے رہنے والے جو ہے ان کو پانی مل سکے۔ جی، جام صادق پل کو آج شہریوں کے لیے مکمل کھول دیا گیا۔ پل کو ترقیاتی کام کے لیے صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک بند کیا جا رہا تھا۔ پل پر ترقیاتی کاموں کے ساتھ شہریوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ جام صادق پل کو آج شہریوں کے لیے مکمل کھول دیا گیا۔
पुल को तरक्याती काम के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद किया जा रहा था। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी इस वक्त शाहराह भुट्टो पर जाम सादिक पुल से मुतसिल मुकाम पर मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे दूसरी जानिब जो है वो जाम सादिक ब्रिज है, जो गुज़िश्ता 3 रोज़ बंद था आवाम के लिए। इस वक्त जो है वो जाम सादिक ब्रिज को आवामुन्नास के लिए खोल दिया गया है और बंद होने की वजह ये जो गार्डर थे इनको जाम सादिक पुल से क्रॉस करना था। मेरे कैमरामैन सज्जाद अली हैदर आपको दिखाएंगे कि ये गार्डर का काम कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इसकी तरक्याती काम जो है वो अभी भी जारी है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको सज्जाद के अभी भी इसके ऊपर तरक्याती जो काम है इसको वो अभी तक जारी है। वहाँ पर मज़दूर इस पर काम कर रहे हैं। अलबत्ता जो जाम सादिक ब्रिज जिसको बंद किया गया था 14 मार्च से, अब उसको अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया है। अख्तर कॉलोनी से जो सनती इंडस्ट्रियल ज़ोन की तरफ जाना चाहते हैं शहरी, वो बासानी जाम सादिक पुल से अपने मकाम पर जो है वो बासानी जा सकते हैं। अलबत्ता जो जाम सादिक पुल पर जो काम है वो अभी चल रहा है और इसके अलावा शाहराह भुट्टो पर भी जो काम है वो ये दूसरा लिंक उसका इस ये कोरंगी नदी के उस पार जो है वो जाएगा और इस तरफ भी तरक्याती काम के लिए बेशुमार मज़दूर इस वक्त काम कर रहे हैं और इस ब्रिज से मुतल्लिक जो भी मेंटेनेंस का काम है, तरक्याती काम है, वो उसके लिए दिन रात यहाँ के मज़दूर जो हैं वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं। यहाँ के इंजीनियर्स सिंध हुकूमत के इस ख़ास हिदायत है कि जितना जल्दी हो सके इस काम को मुकम्मल किया जाए ताकि जो इंडस्ट्रियल ज़ोन के जो हमारे सनतकार हैं और यहाँ पर काम करने वाले वर्किंग जो शहरी हैं वो बासानी यहाँ उनकी आमदरफ़ बासानी बना सके। जबकि सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं उनका भी कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से इस काम में किसी किस्म की कोई कोताही ना हो और इसकी रफ्तार में दिन रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा किया जा रहा है ताकि जितना जल्दी हो सके आवाम को रिलीफ मिल सके। ये शहरियों के लिए बंद किया गया था, अब इसको शहरियों के लिए खोल दिया गया है। बासानी लोग जो इंडस्ट्रियल जोन की तरफ आना चाहते हैं वो अख्तर कॉलोनी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ जो बासानी आ सकते हैं। जी, 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम की शहादत का दिन। हर साल की तरह इस साल भी निस्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा जो कि खारादर इमाम बारगाह तक इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एमेजिना रोड से मुंसलिक तमाम रास्तों पर कंटेनर्स उतार दिए गए जो कि जुलूस से एक रात कबल लगा दिए जाएंगे। बात करेंगे मीर केरियो से, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल 21 रमज़ान हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का दिन है। इस दिन पर हर साल कराची में ख़ासतौर पर निस्तर पार्क से एक अज़ादारों का जुलूस निकलता है जो कि खारादार इमाम बारगाह तक इख्तिताम पजीर होता है। इस साल भी ये जुलूस जो है निकलेगा जो कि निस्तर पार्क से निकलेगा, खारादार इमाम बारगाह तक इख्तिताम पजीर होगा। इसी सिलसिले में जो एमेजिना रोड है जिससे जहाँ से वो जुलूस बरामद होता है गुजरता है, उससे जो मुंसलिक रास्ते हैं ख़ासतौर पर सदर और गार्डन से जो रास्ते उससे एमेजिना रोड से मुंसलिक होते हैं उनको बंद करने के लिए कंटेनर लगाए जाते हैं। इस साल भी कंटेनर आज कल से उतारे गए हैं जो कि 21 रमज़ान से एक दिन कबल एक रात को लगाए जाएंगे। अगर इस तरफ देखें तो ये पीछे अगर मेरे अकब में देखें तो यहाँ भी कंटेनर लगे हुए हैं जो कि 21 रमज़ान से एक दिन कबल रात को यहाँ पर तमाम तर जो मुंसलिक रास्ते हैं, गलियाँ हैं, उनको ट्रैफिक के लिए, आम शहरियों के लिए बंद किया जाएगा। इस तरह भी आप देखें तो ये मेन मार्केट है सदर की, पास में जो है एम्प्रेस मार्केट भी है। वहाँ से जो तमाम तर रास्ते हैं उनको बंद करने के लिए, मुकम्मल तौर पर सील करने के लिए, किसी भी सिक्योरिटी खदशे से निपटने के लिए जो तमाम तर रास्ते हैं उनको बंद किया जाएगा। ये इस तरफ ये रोड है मेन रोड, ये भी एम्प्रेस मार्केट से होता हुआ सदर और ख़ासतौर पर आगे जो है एमेजिना रोड से ये जो है मुंसलिक होता है। तमाम तर जो रास्ते हैं उनको अभी से ही जो है यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो उतार दिए गए ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी खदशात हो या सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनको फुल प्रूफ करने के लिए ये कंटेनर्स उतारे गए हैं। सिक्योरिटी नाफिज की जाएगी ताकि जो जुलूस है वो पुरअमन तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँचे। जी, सिंध में नए माली साल के बजट की तैयारियां। सिंध असम्बली के आज होने वाले इजलास में प्री बजट पर बहस होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से जो कि इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। 1:30 बजे इजलास का वक्त है।
जो एजेंडा जारी किया गया है आज का, उसमें सिर्फ जो है प्री बजट का एजेंडा शामिल है और कोई बिज़नेस नहीं है। चूँकि गुज़श्ता जुमे को जब इजलास ख़त्म हुआ था तो स्पीकर ने एक रोलिंग दी थी एक हुकूमती तहरीक के जवाब में कि आज यानी पीर से लेके आने वाले जुमे तक सिंध असम्बली जो है प्री बजट डिस्कशन करेगी, यानी बजट तजावीज़ दी जाएंगी अरकान की जानिब से, उनको नए आने वाले माली साल में शामिल किया जाएगा। तो ये प्री बजट इजलास है जो आज से लेके जुमे तक यही एजेंडा रहेगा कि प्री बजट डिस्कशन। तो इसमें होगा ये कि नए माली साल के बजट की तैयारियां हैं जैसा कि, तो इन तजावीज़ को सामने रख के बजट तैयार किया जाएगा। इसमें ये रूल्स और बिज़नेस में शामिल है सिंध असम्बली के कि असम्बली के बजट इजलास से कबल बजट तजावीज़ पर भी इजलास होगा। तो आज जो है, आज से बजट तजावीज़ पर ये इजलास है। 1:30 बजे इजलास का वक्त है, अभी तक अरकान नहीं पहुँचे हैं। इस पर ख़ास तौर पे अपोजिशन का किरदार अहम होगा चूँकि हुकूमत तो बजट बनाती ही है, लेकिन अपोजिशन अपनी तजावीज़ शामिल करने के लिए कोशिश करेगी कि नए माली साल 2025-26 का जो बजट होगा उसमें अपोजिशन की तजावीज़ शामिल हों। जी बहुत शुक्रिया आपका। महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान के लिए 206 मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला। पानी और ज़राअत ट्रांसफॉर्मेशन अफसरान के लिए मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। आलमी बैंक की मदद से चलने वाले मंसूबे के लिए मोटरसाइकिलों की खरीदारी थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। महकमा ज़राअत ने ऑक्शन के लिए टेंडर जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आज़ाद नूरियो। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा ज़राअत के फील्ड अफसरान के लिए 206 मोटरसाइकिलें खरीद करने का फैसला कर लिया है। पानी व ज़राअत ट्रांसफॉर्मेशन अफसरान के लिए मोटरसाइकिलें खरीद की जाएंगी, जबकि आलमी बैंक की माली मदद से चलने वाले मंसूबे के लिए मोटरसाइकिलों की खरीदारी थर्ड पार्टी से करवाई जाएगी। इस हवाले से मोटरसाइकिलों की खरीदारी के लिए ऑक्शन होगा और महकमा ज़राअत ने ऑक्शन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जारी कर दिया। ये टेंडर जो परचेज का आर्डर जारी होने के बाद 30 दिन के अंदर ये मोटरसाइकिलें महकमा पानी व ज़राअत का जो शोबा है ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका जो हेड ऑफिस हैदराबाद में, वहाँ पर मोटरसाइकिलें जो है वेंडर के जरिए फराहम कर जाएंगी। इस हवाले से महकमा ज़राअत के फैसले के बाद महकमा ज़राअत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका टेंडर भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों की कम तादाद होने के बायस 2 ट्रेनें मुअत्तल। कराची से लाहौर जाने वाली पाक कराकरम और कराची एक्सप्रेस रवाना ना हो सकी। पाक बिजनेस 6 बजे कराची और कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिर को लेकर रवाना होगी। मज़ीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना है और मैं आज एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हूँ। जैसा कि मुसाफिरों की तादाद जो है वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से कम देखी जा रही है, जिसके बायस ट्रेनों की जो मुअत्तली का सिलसिला है वो आज भी देखा गया है। आज भी कराची से लाहौर रवाना होने वाली कराकरम और कराची एक्सप्रेस को जो है वो मनसूख कर दिया गया है, जबकि कराची एक्सप्रेस के जो मुसाफिर हैं उनको शाह हुसैन एक्सप्रेस में जो है वो ज़म किया गया है। और इसी तरह जो कराकरम एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं वो 4:30 बजे कराची से रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जो है वो सफ़र करेंगे। और रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की मन मर्जी भी जो है वो मानी जा रही है। जैसा कि ट्रेनों के एडजस्टमेंट का सिलसिला हम गुज़िश्ता एक हफ़्ते से देख रहे हैं, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि मुसाफिरों को जो है वो आगे जाने वाली ट्रेन में जो है वो ज़म किया जाता है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अगर मुसाफिर किसी दूसरी ट्रेन में जाने की जो वो ख्वाहिश कर रहे हैं और वो उस वक्त तक रवाना हो रही है, तो रेलवे की जानिब से जो है मुसाफिरों के साथ जो है इस किस्म के जो है कोऑपरेट किया जा रहा है कि अगर कराकरम का मुसाफिर रात जाने वाली जो रहमान बाबा है या फिर 7:30 बजे जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस है उसमें जाने की ख्वाहिश करते तो उसमें जगह बना के, अगर जगह होती है तो बिल्कुल जो वो एडजस्टमेंट की जा रही है मुसाफिर की ख्वाहिश के मुताबिक। जबकि ये भी देखा जा रहा है कि ट्रेनों की जो एडजस्टमेंट है वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से देखी जा रही है। रमज़ान मुबारक का महीना, मुसाफिर थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन टिकट इंतहाई जो है वो कम होने के बायस है, वो 30% टिकट होने के बायस है वो ये देखा जा रहा है कि जो पेट्रोल है उसको, जो डीजल है, ऑयल है, इतना महंगा लाखों रुपए का, उसको बचाने के लिए जो वो ट्रेनों को ज़म किया जाता है ताकि एक वक्त में जो है वो तमाम मुसाफिर जो बासानी सफ़र करके जो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रेन मनसूख की जा रही है वो लाहौर जाने वाली ही की जा रही है, क्योंकि कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनों की
तादाद जो है वो 7 के करीब है, जिसमें से रोज़ाना हम देख रहे हैं कि 2 के करीब जो है वो ट्रेनें मनसूख हो रही हैं और यही सिलसिला आखिरी हफ्ते में देखा जाएगा। अब से 4 से 5 दिन बाद के ट्रेनों की रवानगी में जो है मुसाफिर की तादाद जो है वो ज़्यादा देखी जाएगी, क्योंकि मुसाफिर ईद मनाने के लिए जब अपने प्यारों में जाएंगे तो टिकट का सिलसिला जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा। जी। शुगर के अमराज में मुब्तला 70% अफराद हार्ट अटैक का शिकार होने लगे। पाँव भी काटने की नौबत आ रही है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिर अमराज कल्बो शुगर मजीद क्या कहते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल शुगर के अमराज में मुब्तला मरीज़ों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ अस्पतालों में जो शुगर के मरीज़ हैं वो दिल के अमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं और उनको ज़्यादातर जो है उनको हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि वो शुगर के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं और अपना शुगर पर कंट्रोल नहीं कर रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में दिल की बीमारियों के दूसरे बड़े अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन, जिनके पास बड़ी तादाद में मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि शुगर के अमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं और दिल के मरीजों में भी इजाफा हुआ है उनके। तो सर बताइएगा, क्या कहेंगे, शुगर के मरीजों में हार्ट अटैक बढ़ चुका है दिल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शुगर का जो बुनियादी तौर पर मसला है कि शुगर का जो मरीज़ होता है उसका अपना इलाज शुगर का नहीं होता, उस इलाज को ही कहते हैं टू प्रिवेंट द सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, यानी शुगर की वजह से जो दूसरे मसाइल पैदा होते हैं उन्हें रोकना है, यही शुगर का इलाज है। और उसमें सरफहरिस्त दिल का अटैक है, क्योंकि असल में शुगर की तादाद, शुगर ज़ाहिर ग्लूकोज होता है, अब उसकी मिकदार जब जिस्म में बढ़ जाती है तो उसे बीमारी क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारी नालियों या जो आर्टरीज़ है उसका सरफेस है वो स्मूथ होता है, उससे ये रफ़ करती है, उसमें फिर खून को जमाने की सलाहियतें हैं, खून को के कोलेस्ट्रॉल को रुकने की सलाहियतें, ये डेब्रीज, कोलेस्ट्रॉल की डेब्रीज बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये मसला यही है कि शुगर की वजह से जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी खून की सप्लाई मुतासिर होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दिल के अटैक और दीगर बहुत सारी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दे और प्रॉपर तरीके से हमें शुगर का इलाज करना चाहिए और इससे इसके चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीली सर ने बताया नसीरुद्दीन शाहीन साहब ने कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें 70% जो दिल के अमराज में इजाफा हो जाता है, तो आवाम को चाहिए कि अपना शुगर कंट्रोल करें और कोई भी तकलीफ हो तो माहिर डॉक्टर के पास जाएं, अताइयों से बचें, क्योंकि इस अमराज में इजाफा हो रहा है, दिल के अमराज में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इजाफा हो रहा है। तो आवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं और माहिर डॉक्टर से रब्ता करें। जी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से अच्छी खबर है। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड ने अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। पेल की पहली एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट अमेरिका रवाना कर दी गई है। स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से अच्छी खबर आई है। पाक इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है, जिसे पेल कहते हैं, उसने अमेरिका को एक्सपोर्ट ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। पेल पाकिस्तान की पहली एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट अमेरिका रवाना कर दी गई है और पेल पाकिस्तान ने स्टॉक एक्सचेंज को अहम मालूमात से आगाह कर दिया है और ये भी कहा है कि पेल पाकिस्तान ने नई इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मसनूआत की एक्सपोर्ट का ऑर्डर की कामयाबी मिली है और यहाँ पे पेल दुनिया में अपनी आला क्वालिटी मसनूआत की एक्सपोर्ट मजीद बढ़ाएगा, कंपनी का कहना है। और इसमें ट्रांसफार्मर से लेके दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक की जो अशिया है, पेल जो है पाक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पाकिस्तान में बना रहा है। अब वो अमेरिका को उसने कंसाइनमेंट शुरू कर दी और कहा है कि दीगर ममालिक को भी अब अपनी कंसाइनमेंट के लिए एक्सपोर्ट की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा तालीम से बड़ी खबर, इस्लाम में 2 डिस्ट्रिक्ट अफसरान के बजाय 1 DEO मुकर्रर। हेडमास्टर्स को बराह रास्त फंड्स देने का फैसला। महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, मोहतसिब आला सुहेल राजपूत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, चेयरमैन P&D नजम शाह, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी, सेक्रेटरी खजाना फयाज शिकोई और दीगर शरीक हुए। स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना है। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर कहा कि स्कूल एजुकेशन में गवर्नेंस, तालीम का मियार और बच्चों की स्कूलों तक आसान रसाई होनी चाहिए। महकमा तालीम की तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध
मुराद अली शाह का इजलास में फैसला, जबकि असातिज़ा और तलबा के हाजिर के चेहरे की शनाख्त के साथ जिस हिदायत होगी वज़ीर आला ने फैसला किया है। जैसे वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि स्कूल इंतजामिया को इंतजामी इख्तियार दे रहे हैं, हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड दिए जाएंगे ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि हेड मास्टर को नए माली साल से बराह रास्त DDO पावर दिए जाए, तमाम स्कूलों की अपनी बजट होगी और वो खुद खर्चा कर सकेंगे। जबकि स्कूल इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर किया जाए, वज़ीर आला ने यह हिदायत जारी की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि तालीम का फोकस स्किल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल 36,300 और एलिमेंट्री स्कूल 2600 है, वज़ीर तालीम का ये कहना है। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि प्राइमरी स्कूल ज़्यादा ही, एलिमेंट्री और स्कूल कम है। मिडिल स्कूल और रेशियो प्राइमरी स्कूलों का मुनासिबत से किया जाए। जबकि तलबा की ऑल इनरोलमेंट 5.2 मिलियन है, जबकि 3.09 मिलियन बॉयज और 2.82 मिलियन गर्ल्स शामिल हैं, वज़ीर तालीम ने कहा। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में गर्ल्स की 2.12 मिलियन इनरोलमेंट यानी 41% है। गर्ल्स की इनरोलमेंट बढ़ रही है और जो कि अच्छी सूरत हाल है। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने जवाब दिया कि 7.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुझे 7.8 मिलियन बच्चे स्कूल लाने हैं। वज़ीर आला का वज़ीर तालीम को खुसूसी टास्क उन्होंने दिया है। जबकि वज़ीर आला की क्लास रूम एक्टिविटी खुसूसी तवज्जो देने की उन्होंने हिदायत जारी की है। जबकि 1808 स्कूल सैलाब में टूट फूट का शिकार हुए। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने वज़ीर आला को ये ब्रीफिंग दी। वज़ीर तालीम ने कहा कि सैलाब में स्कूलों की इमारतें मुतासिर होने से 2.3 मिलियन बच्चों की तालीम मुतासिर हुई है। जबकि 4,089 स्कूलों की तामीर का काम जारी है। वज़ीर आला की हिदायत है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों की तामीर का काम तेज करे। वज़ीर आला ने गैर जरूरी स्कूल इंतजामिया को खत्म करने की भी हिदायत दे दी है। वज़ीर आला ने कहा कि तालुका जिला और डिविजनल सतह पर गैर जरूरी स्कूल इंतजामिया काम की जाए। गैर जरूरी स्कूल से इंतजामिया का खत्म करने का काम जारी है। सुबह वज़ीर तालीम ने वज़ीर आला को ये जवाब दिया। DEO समेत DEO एकेडमिक, DEO स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।